ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਫੀਅਰ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰੋਡਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਦੇਅਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਉਹ 'ਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਫੀਅਰ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਬਣ ਸਕਣ, ਉਹ ਜੋਬ ਸੀਕਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਕਲਿੱਪਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਡਿਟੇल्स हैगी ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद कि आपने इस कोर्स को चुना है। ये 10 दिन का कोर्स है और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, और जो अभी तक बच्चे नहीं आए, मैं कह रहा हूँ कि वो ज़रूर आए, क्योंकि ये पंजाब सरकार के द्वारा एक स्कीम के तहत जो विश है खासतौर से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और ये इसके लिए आपको अभी बुक्स भी मिलेंगी। आपको ये कोर्स ख़त्म होते होते आपको जो है इंडस्ट्रियल विजिट्स भी करवाई जाएंगी। बैंक्स के लोग भी आएंगे यहाँ पर, बैंक्स के लोग जो है मैनेजर्स वगैरह सारे यहाँ पे आएंगे। वो कौन सी पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही या भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स हैं जिसके तहत आप बैंक से लोन ले सकते हैं, या जो भी आपका एक प्रोजेक्ट होगा वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस 10 दिन के प्रोग्राम के बाद जो आज हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं, आप जितने बच्चे हैं वो सारे सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर बन जाओ और आप अपना एक बिजनेस भी बनाओ। इस प्रोसेस के अंदर हर एक बच्चे से हम एक बिजनेस जो है वो शुरू करवाएंगे आपकी मर्जी का। तो यू आर गोइंग टू बी अ बिजनेस वुमन आफ्टर 10 days। ओके, तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। मुझे नहीं पता कि जो नहीं आए क्यों नहीं आए, वो बुलाए थे, आ जाए तो बढ़िया। अगर आपके लिंक में है तो बुला लीजिएगा, ठीक है। जो आपके साथ और है जो नहीं आए कोई है तो उसको फ़ोन कर लीजिएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन, इसमें सारे जलंधर शहर के बहुत से कॉलेज थे, लेकिन मैंने जिद करके अपने कॉलेज में करवाया कि मेरे बच्चों को ये चीज़ मिलनी चाहिए। नहीं तो जैसे मैं नाम ही लूँगा, गर्ल्स कॉलेज कितने ही हैं जलंधर में, आप सब जानते हैं, तो वहाँ पर जा रहे थे लोग। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट टू डू इट इन आवर कॉलेज, जो हमारे बच्चे हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो इसलिए उन सबको यहाँ पे इसलिए बुलाया गया, आप सबको इसलिए पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया गया, ठीक है। तो
तो आप में से कितने लोग जो है बिजनेस वूमेन बनना चाहती हैं, बताइए। आप खड़ा करें जरा, कितना छोटा था, कोई बनना चाहता है बिजनेस वूमेन की नहीं बनना चाहता भी? अच्छा, सारे बनना चाहते हैं, एक दो को छोड़ के। वो कहती मैंने नहीं बना, तुम्हें नहीं बना, नौकरी करनी। हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप अभी सर्च भी करेंगे तो इतनी सारी जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, हमारे इंडियन जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, अर्थव्यवस्था, समय हिंदी समझ तो आ जाए भाई, तो उसके अंदर वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही है। अगर आप सर्च करके देखिएगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, तो आपको पता लगेगा कि जैसे अगर आप नायका है या जिससे भी आप शॉपिंग परचेज वगैरह करते हैं, जितने भी ब्रांड हैं, ये ऑल रन बाय यू पीपल। एक जो लड़कियां हैं उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है और वो मिलियंस में कमा रही हैं, बिलियंस में कमा रही हैं, एक छोटा सा आइडिया के साथ। और ये जो प्रोग्राम है सर्टिफिकेट कोर्स जो आपका IT अवेयरनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये उसी के रास्ते पे चलने के लिए कि आप नौकरी देने वाले बने, ना कि लेने वाले बने। और एक छोटी सी चीज़ के साथ या एक छोटी सी आइडिया के साथ आप अपने आप को सारा कुछ चेंज कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेरी मास्टर्स भी है उसकी मेरी स्पेशलाइजेशन भी एंटरप्रेन्योरशिप पे है, ठीक है। आई डिड माई मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से। तो एक सब्जेक्ट मेरा हमेशा से एक बड़ा वीकनेस रहा है और इससे आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आज कुछ चीज़ें मैं हासिल कर पाया तो शायद इसी एंटरप्रेन्योरशिप के कारण ही वो कर पाया, क्योंकि इससे आपकी एक सोच बदल जाती है, आपकी काम करने का ढंग जो है वो बदल जाता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस कैन चेंज योर ओवरऑल विजन ऑफ योर सेल्फ। आपकी विजन, चीज़ों को देखने का रास्ता, नज़रिया एकदम से बदल जाएगा, क्योंकि अभी तक आप अपने आप को एज ए यूज़र देख रहे हो, आप आपको यूज़र देख रहे हो, अब आप एक प्रोड्यूसर बन जाओगे। आप समझ रहे चीज़ को? अभी आप सूट्स, साड़ी, कुछ और मेकअप वगैरह सारा कुछ आप खरीदते हैं यूज़र। आपका नज़रिया बनेगा कि इसको मैं बेचूं कैसे अब और उससे पैसे कैसे कमाऊँ। अभी हम पैसे खर्च कर रहे हैं, इस सारे एपिसोड के बाद आपको लगेगा कि मैं पैसे कमाऊँ कैसे, और इसलिए आपको अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है इट्स अवेलेबल फॉर ऑल द ग्लोब। कहीं पे भी आप जाते हैं तो ये शुरू हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। किसी को मालूम है? इतनी बड़ी बातें हम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर क्या होता है? यस प्लीज़, कोई बताओ। आपने कोर्स करने के लिए आए हैं, तो क्या होता है एंटरप्रेन्योर? अपने बलबूते पे कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करे, स्टार्टअप किया जाए, एंटरप्रेन्योर उसको कहते हैं। वेरी गुड। क्या नाम आपका? विशाल। वेरी गुड विशाल। और कोई अपनी भाषा में? जब हम कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम जो बिजनेस करने वाला है उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज। क्लियर? और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक बिहेवियर है, एक एटीट्यूड है, एक विजन है कि मैं बिजनेस करना है मुझे। एक बिजनेस ओरिएंटेशन जो है दैट्स अ एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस करने की जो कला है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। एनीवन यस बेटे, आपको आपके बात है? An entrepreneur is someone who exercises initiative by organizing a venture to take benefit of an opportunity and as a decision maker decide what, how and how much of a good or service will be produced. अभी मैंने यही बताया था कि कोई भी शख्स, कोई भी ऐसा इंसान जो एक आइडिया के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी देखता है। अब अपॉर्चुनिटी क्या है? अब आपको अगर मैं बताऊं, जोमेटो सब करते हैं, है ना? जोमेटो एक अपॉर्चुनिटी थी कि घर बैठे हमें खाना चाहिए। अब सारे होटलियर जितने थे, सारे फूड चेन जितनी भी थी, उनको
उनको अपने अपने बंदे रखने पड़ते थे सर्विस के लिए। सबको उन्होंने बाइक्स दे रखे थे, सबको उतना, जैसे डोमिनोज वाले थे या फिर जो पिज़्ज़ा हट वाले थे, उन सब ने एक हाउस होल्ड के लिए अपने बंदे रखे हुए थे। लेकिन सारे जाने एक छोटे से छोटा, जैसे आपके गली के अंदर जो एक रेस्टोरेंट है, वो उस बंदे को सैलरी नहीं दे सकता, उसके लिए मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता 1 लाख रुपए। आप समझ रहे चीज़ को, बिजनेस से सीखिएगा। अगर ये छोटा रेस्टोरेंट एक सर्विस वाला रखता है, डिलीवरी बॉय रखता है, तो पहले उसको 60-70 हज़ार रुपये मोटरसाइकिल लेके देना पड़ेगा। नहीं है तो उसको बोलो आप अपना मोटरसाइकिल लेके आओ, फिर उसको कम से कम 8-10 हज़ार 12 हज़ार तनख्वाह देनी पड़ेगी उसको, फिर उसका फ्यूल एक्सपेंसेस होएगा, और एक डिलीवरी बॉय से काम चलेगा नहीं, क्योंकि मल्टीपल ऑर्डर्स आएंगे तो कैसे करेगा। तो अगर वो 4, 5, 6, 7, 8 रखता है, तो आप देखो 1.5-2 लाख रुपए उसका खर्चा ऐसे ही हो गया। और उससे क्या होगा, उसकी फूड कॉस्ट जो है, समझ रहे हो आप, उसकी क्या होगी। अगर वो 100 रुपये का पिज़्ज़ा बेचता है, अगर उसका महीने का 1 लाख रुपए बढ़ गया, तो पिज़्ज़ा महंगा करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा। बैठिए, समझ रहे नहीं समझ रहे। बिजनेस सोचना आपने, बिजनेस वूमन हो आप जब वो पिज़्ज़ा महंगा करेगा तो कौन पे करेगा उसके लिए, कस्टमर पे करेगा। दूसरा, जो पिज़्ज़ा है वो 100 रुपये का दे रहा है, तो क्या आप 110 रुपये का पिज़्ज़ा से खरीदोगे? खरीदोगे? तो बिजनेस बंद हो गया ना उसका। तो उसके कारण क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी मिली जोमेटो वालों को कि शहर के अंदर, देश के अंदर इतने रेस्टोरेंट्स हैं, उनको अगर सर्विस देनी हो तो उनके लिए सर्विस करते करते उनका व्यापार जो है, बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्यों ना एक ऐसा आइडिया दिए, हम उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हम उससे प्रोडक्ट कॉस्ट वही रहे, 100 रुपये का पिज़्ज़ा रहे, लेकिन सर्विस चार्जेस से 5-10 रुपये हम ले लेते हैं, डिलीवरी चार्जेस होते हैं ना उसमें, तो हम उससे डिलीवरी चार्जेस ले लेते हैं। उसके बराबर उसमें क्या होता है, आपको ऑफर्स मिलती हैं 10%, 20%, कुछ ऑफर्स मिलती हैं। दैट इज द अपॉर्चुनिटी। ये एंटरप्रेन्योरशिप है, समझे। ये एंटरप्रेन्योरशिप है कि जब आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी। अगर आप देखें, सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़, ये एग्जाम्पल समझ आ गया आपको कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। इसका एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अगर आपने ओला, उबेर की टैक्सियाँ सारी उसी का आइडिया ही है ये। अब आप जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं या ऑनलाइन कपड़े खरीदते हैं, अमेजोन करते हैं, या फिर दूसरे ब्रांड की चीज़ें लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग जिसको कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप। उनको एक आइडिया नज़र आया कि इसके थ्रू कर सकते हैं। ये तो चलो ऑनलाइन चीज़ें होगी। अब एक और सिंपल चीज़ है कि आप मान लीजिए हमारे देश में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, ओबेसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो लड़कियां भी मोटी हो रही हैं, लड़के भी मोटे हो रहे हैं, और सारे जनरेशन भी मोटी हो रही है। वही नेचुरल है कि हमारा खान पान ऐसा है। अब जो पहले एक्स लार्ज स्मॉल आते थे, अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डबल एक्सएल, और उसका भी तो फिट नहीं आता तो और बड़े मोटे होने के लिए। आई गेट इट माय पॉइंट। तो अब एक बड़ी मार्केट डेवलप हो रही है कि इसको एक पर्टिकुलर मोटे कपड़ों के, मोटे लोगों के कपड़े बनाए जाए, 6XL जिसको कहते हैं, कुछ और कह सकते हैं। तो वो बेचारे कहाँ जाए। जैसे आपके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, अगर आपने फिल्म भी देखी हो, डबल एक्सएल फिल्म देखी थी किसी ने, जो उसमें भी वो मोटे लोगों के कपड़े सिलते हैं। दैट वाज एन आइडिया कि उनको भी सुंदर लगने का हक है, जरूरी थोड़ी कि उनके लिए वो ड्रेसिंग नहीं होगी। ये वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई। एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हू सीज अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज नीडेड, एंटरप्रेन्योरशिप, सिस्टमैटिक इनोवेशन। Enterprise is a business. Entrepreneur is a person who starts an enterprise. The process of creation is called entrepreneurship. ठीक है? समझ गए नहीं समझ गए? ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, तो आपको जो पढ़ेंगे आपको खुद पता लग जाएगा। You don't have to recall it, क्या चीज़ें क्या नहीं। ठीक है? अब एक काम करते हैं, आपको मैं 2 से 4 मिनट देता हूँ, ठीक है। कुछ एक और चीज़ें भी है, मैं आपको बता देता हूँ। क्या नेक्स्ट कमेंट है?
एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स इन डिसीजन मेकिंग। आप सब डिसीजन मेकर होते हो क्योंकि आप बॉस हो, तो डिसीजन कौन लेगा आपका? आप ही लोगे ना, आप ही लेंगे इसको करने के लिए, कोई आपके लिए डिसीजन नहीं लेगा। यू आर अ डिसीजन मेकर एंड यू आर डायनामिक। डायनामिक समझते हो? डायनामिक क्या होता है? डायनामिक is the person who can do many things. He can change his ideas, views, जो ढाल लेता है अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेता है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, कई चीज़ें ऐसी होती है कि आपके घर के आसपास मान लीजिए फ्रेश जूस वाला नहीं, आपको फ्रेश जूस बनाने बाहर जाना पड़ता है, तो आप क्या कर सकते हो? जस्ट एन आइडिया, व्हाई पीपल आर गोइंग टू मॉल टाउन, मकसूदा और एनीवेयर एल्स टू ड्रिंक फ्रेश जूस। तो मैं यहाँ पे एक शॉप लेके फ्रूट की शॉप खोल लेती हूँ, तो लोग फ्रेश जूस पिएंगे। जस्ट स्मॉल थिंग, आप कोई डोसा बनाता है या खाने का चीज़ है या कुछ बेचने की चीज़ है, अगर मान लीजिए आपको दूर जाना पड़ता है, जैसे किराने वाले जितने भी हैं, दे आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स। दे प्रोवाइड यू मिल्क, शुगर और जितनी चीज़ें हैं आपके घर में पहुँचा रहे हैं, दे आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स। पीसीए क्या बोल रहा है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ना पहले अपने एरिया का ही करना चाहती क्योंकि लाइक मेरे एरिया में साइड ना कोचिंग क्लासेस भी बहुत हाई है। अगर गल करिए कोडिंग क्लास लेने में, लाइक मैं साइंस स्टूडेंट की बैकग्राउंड का कंप्यूटर साइंस की, अगर कोडिंग क्लास अप्रोच करनी हुई उस क्लास एक कोर्स भी सानू 25,000 30,000 देना पैंदा। मैं चाहती हूँ कि मैं एक कोडिंग क्लासेस स्टार्ट करा पहले अपने साइड को ही कि स्टूडेंट्स ਨੂੰ लो प्राइस से अपना क्लासेस प्रोवाइड करिए, फिर नाल दे नाल 10th क्लास के स्टूडेंट्स ਨੂੰ भी नाल दे नाल क्लासां प्रोवाइड करा। फिर उस बाद मैं खुद ही वैबसाइट बनाना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर अगर जे मैं इस काबिल होवां कि मैं वैबसाइट बना के उन्होंने ऑनलाइन शो करा, फिर अगे दूसरे भी ज्वाइन करना। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? कोडिंग एंड 10th क्लास ठीक, ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਗੁੱਡ। ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ हेयर ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਫਾਈ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। वेरी गुड। नेल एक्सटेंशन और हेयर एक्सटेंशन, एक्सीलेंट। आपकी यहाँ पर डिटेल्स बाद में गल करेंगे। आई एम जस्ट थिंकिंग कि ਆਈਡੀਆ ਸੀਗੀ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸਟ ਤੇ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋ ਹੋਵੇ ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਚ केड़ा स्ट्रीट फूड? ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਾਊਥ मैं कह रहा एक काम करना, रेड़ियाँ नहीं लानी, रेड़ियाँ लानी है अच्छी गल है। जे तो उसी चपाटी अपनी बनानी है जगह से लैके, फिर तुम मल्टीपल कर सकते हो। जे चीज़ अपनी नहीं बना सकते दैन यू हैव अ पर्टिकुलर चॉइस, ठीक है? ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਟਿਫਨ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। केड़ा सर्विस? ਟਿਫਨ टिफिन सर्विस, वेरी गुड, वेरी गुड। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂट्स ਹੋਸਟਲਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ बहुत प्रॉफिट है। फाइनल ईयर की स्टूडेंट है सर। मेरे एक्चुअली मेरा MBA? बी फाइनल मेरा एक्चुअली टीचर बनना शौक है, बट मैंने नाल अपना बिजनेस का भी करना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵੈਲਰੀ ਦਾ, ਕਿ ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਮਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੁਮਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, 1000 ਰੁਪੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੇਟ ਰੱਖੂੰਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਫਰ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਮੱਠੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੀ। वेरी गुड, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਬਾਈਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ वेरी ਅੱਜ गुड। ਕੱਲ੍ਹ, ਕੀ ਬੋਲ रहा? ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਮਿਲੇ, ਬਟ ਬਾਈ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ बाकी में डिटेल्स bachelor's in finance. I want to run my business of fashion design. वेरी गुड फैशन डिजाइन Yes. वेरी और मैं बी फार्मेसी की स्टूडेंट हूँ 7th और मैं अपना मेडिकल स्टोर खोलूँ। जैसे हम विलेज में रहते हैं, हमारे आसपास में